Now in this video I am explaining type of sets. Okay, how many types of sets are there? So one of them is, first one is empty set or null set. Okay, as its name shows, empty means nothing is there, khali, null. A set in which no any element belongs, that is called null set. For example, suppose x belongs to A such that x is a students presently studying class 11th and 12th of your school. चलिए, means in set A those students those are presently studying in class 11th and 12th. Is it possible? No. Either he or she may be in class 11th or 12th. So that's why it is null set. No one will come to this. Set B, x is an integer greater than 6 and less than 7. X belongs to B, and what is the condition for x? It is an integer and greater than 6, less than 7. 6 से बड़ा और 7 से, 6 और 7 के बीच में कोई इंटीजर आता है क्या? नो. 6 और 7 के बीच जो नंबर आएंगे 6.112 कुछ भी 6.5 लाइक दैट, दीज आर नॉट इंटीजर्स. Integer means complete integer. 6 itself an integer and 7 itself an integer. Between two consecutive integer, no any other integer belongs. So again B is what? Null set. Means a set is defined in such a way no any element belongs to it is called null set. Okay. Now to represent null set, we like this phi. Phi represent null set. जैसे थीटा अल्फा बीटा होते हैं, लाइक दैट फाई इज ऑल्सो एन अल्फाबेट, है ना. सो फाई रिप्रेजेंट नल सेट, और नल सेट यू कैन राइट लाइक दिस, टू करली ब्रैकेट एंड नथिंग इज बिटवीन दैट. इफ यू राइट लाइक दिस 0, so don't think it is empty. 0 belongs to this set, so that's why it is not empty set. Okay, so now I think you have understood the meaning of null set. Now come here, finite set. Finite set. Look at this set. Give any name here, P or Q, whatever. 2, 4, 6, 8, dash, 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 500. Means you can count the element. How many are there? 250 are there. Whatever you can write here. Suppose you write here 0, 0. कितना ही बड़ा कर दो, but there is a limit. So this is called finite set. Means ऐसे set जिसके elements को हम count कर सकें. And here 1, 3, 5, 7, 7, 7, dash, 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 infinite. So this is called infinite set. So finite and infinite, it is clear. Now come to equal set. Now look here. Set A is having 1, 2, 3, 4. How many elements are there? 4. B is having 4, 2, 1, 3. B is having again 4 element and same element as it is in A. That's why A and B are equal sets. Means if same elements belongs to in two sets and same number of elements are there, then the sets are called equal sets. But in this also, if A equals to 1, 2, 3 and B 1, 2, 2, 3, 3, 3, it doesn't mean that B has 6 element. No, B has only 3 elements only. एक ही एलिमेंट को कई बार रिपीट करने से वो सेट बढ़ नहीं जाता है, इसके एलिमेंट 1, 2, 3 ही आए. So that's why A equals to B. ठीक है. So कोई दो सेट में यदि सेम एलिमेंट हैं, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, भले उनका ऑर्डर डिफरेंट हो, तो इक्वल सेट्स कहलाते हैं. यू कैन गिव गिवन लाइक दिस. वन एग्जाम्पल, A 2, 3 and B. In B, x belongs to B such that x is the solution of this equation. Okay, we solve this equation by factorization method. Then we get -2, -3. So B has what? -2, -3. Or A has 2 and 3. So A and B are not equal.
सेम एलिमेंट्स आर नॉट देयर। हाँ, इसके सॉल्यूशन भी 2 और 3 आ जाती तो हम कहते हैं। सो लाइक दिस इक्वल सेट्स, नॉन इक्वल यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, बहुत सिंपल मेथड्स हैं। एक्सरसाइज यू हैव टू अटेम्प्ट एंड यू स्टार्ट सेंडिंग डाउट्स। ओके, नाउ कम टू subsets. A subset B, it means for all x belongs to A belongs to B। फिर से बता रहा हूँ, A B का सबसेट है तो इसके लिए कंडीशन है for every x belongs to A belongs to B, मीन्स x का हर एलिमेंट किस में होना चाहिए? B में होना चाहिए। सपोज A is the set of all students of class 11 science, students of class 11 science, or set B is a collection of student of BBPS, या A स्टूडेंट ऑफ 11 साइंस ऑफ BBPS, यहाँ BBPS जोड़ना पड़ेगा, और ये B किसका है? सारे स्टूडेंट का BBPS का है। तो A का हर स्टूडेंट जो A में बिलोंग करता है वो BBPS का स्टूडेंट भी तो है। तो A B का क्या बन गया? सबसेट है ना। 2 सेट इस तरीके से हैं, छोटे सेट के सारे एलिमेंट बड़े सेट में है तो वो छोटा सेट बड़े सेट का क्या हुआ? सबसेट हुआ। फॉर एग्जाम्पल, A इज़ द सेट ऑफ all the people of Chhattisgarh and B is the set of all the people of India, then A is subset of B because every citizen of Chhattisgarh is an Indian also. Okay, now look here. If A equals to 1 2 3 5 and B equals to 1 2 3 5 dash dash 100, means every element of A belongs to B also, दैन A सबसेट ऑफ B। और यदि मैं इसमें A में एक एलिमेंट मान लो 0 और ऐड कर देते, देन दीज 4 एलिमेंट्स और 5 एलिमेंट्स आर बिलोंगिंग हियर बट 0 इज नॉट देयर। ठीक है, तो उस केस में हम A को B का सबसेट नहीं कहते, बिकॉज A में एक भी एलिमेंट ऐसा मिल गया जो B में नहीं है तो B A का सबसेट नहीं होगा। ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ A शुड बी इन B, देन ओनली यू कैन से A इज सबसेट ऑफ B। नाउ लुक हियर, A इज सबसेट ऑफ B, समझ गए? अच्छा, नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर। देखो नेचुरल नंबर में कौन आते हैं? 1 2 3 डैश डैश डैश, और होल नंबर में कौन आता है? 0 1 2 3 डैश। तो सारे नेचुरल होल हैं कि नहीं? तो नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर। और इंटीजर में कौन आते हैं? 0 1 2 3 -1 -2 -3। सो ऑल द होल नंबर्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स, सो दिस इज सबसेट ऑफ Z इज सबसेट ऑफ Q इज सबसेट ऑफ R, क्योंकि सारे इंटीजर्स रेशनल हैं, सारे रेशनल रियल नंबर हैं, इसको भी ध्यान रखना है। सो नाउ यू गॉट द मीनिंग ऑफ सबसेट ऑल्सो। ठीक, अब इस वीडियो को बार बार इतनी हिस्से को बार बार हम पॉज करके सुनेंगे, आपको समझ में आएगा। नाउ कम हियर, इफ A सबसेट ऑफ B मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ A बिलोंग्स टू B। A B का सबसेट है तो A का सारे एलिमेंट किस में होंगे? B में होंगे। ठीक है, एंड B सबसेट ऑफ A मीन्स एवरी एलिमेंट बाय ऑफ B बिलोंग्स टू A, यानी बाय यदि कोई एलिमेंट B का है तो वो A में ही बिलोंग करेगा। इट मीन्स A का हर A B का सबसेट है तो A के सारे एलिमेंट B में है, B A का सबसेट है तो B के सारे सबसेट एलिमेंट A में है। इट मीन्स A और B के एलिमेंट्स क्या हैं? सेम है, और A और B क्या होगा? इक्वल हो गए। सो ऑलवेज कीप इन माइंड, इफ 2 सेट्स आर सच दैट दे आर सबसेट ऑफ ईच अदर, इट मीन्स बोथ आर इक्वल। इट मीन्स बोथ आर इक्वल। ठीक है, तो ये दोनों सेट क्या हुए? इक्वल। तो 2 सेट एक दूसरे के सबसेट हैं तो आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। एक बात और हम इसी में बता रहे हैं, आप इसको फिर देखिएगा। नाउ सबसेट का एक और मेथड बताते हैं, एक और तरीका। तो सबसेट का डेफिनेशन इज क्लियर नाउ। नाउ टेक अ सेट A, देन इट्स सबसेट आर
एक सिंपल एक सेट बनाया जिसमें एलिमेंट रख दिया 1, तो इस सेट का हर एलिमेंट इसमें है, तो दिस सेट इज सबसेट ऑफ ए। इफ अ सेट इज हैविंग ओनली 2 दैट इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए। इफ अ सेट इज हैविंग 3 एलिमेंट देन इट इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए। दिस सेट 1 2 it has 2 elements also belonging to A, means this is also subset of A. A set contains 1 3 then it is also subset of A. A set contains 2 3 it is also subset of A, and 1 2 3 this is also subset of A, means every set is subset of A, and pi is considered subset of every set. पाई को सबका सबसेट माना गया, बिकॉज यू कांट give example of any element belonging to pi which is not belonging to A. पाई में कोई आप ऐसा एलिमेंट बता सकते हैं जो पाई में है और ए में ना हो, क्योंकि पाई में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो हम ऐसा एलिमेंट बता ही नहीं सकते हैं, इसलिए पाई ए का सबसेट हुआ। ठीक है ना, जैसे हम कह रहे हैं कि ए में कोई ऐसा एलिमेंट बताओ जो बी में ना हो, तो यदि ए में हम बता दें कि हाँ ए में 0 है बी में नहीं है, तो हम कह देंगे ये सबसेट नहीं है। ऐसी पाई तो खाली है, तो खाई ऐसा कोई सेट ही नहीं, एलिमेंट ही नहीं है जो पाई का ए में ना हो, इसलिए पाई को सबका सबसेट माना गया। चलिए, तो ये तो बात हुई, ये सारे ए के क्या है सबसेट है। 1 अकेला से बना सेट, 2 अकेले से बना सेट, 3 अकेले से बना, 2 एलिमेंट से बने सेट, पूरा 3 एलिमेंट से बना सेट 5। हम काउंट करते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। और ए में एलिमेंट कितने हैं, ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने 3 हैं, और सबसेट इसके कितने 8। तो देखो क्या रिलेशन है, 8 मीन्स 2 to the power 3, 8 मीन्स 2 to the power 3 मीन्स number of subset has an element, number of set has any elements. Okay, if a set has an element then number of subset equals to 2 to the power n. यदि एक सेट में n एलिमेंट हैं तो उसके सबसेट कितने बनेंगे, 2 to the power n। जैसे हमने बनाया, यहाँ पे एक सेट बनाया A B C D, चलो इसके कितने सबसेट होंगे, इसमें कितने एलिमेंट है 1 2 3 4, इसके सेट सबसेट होंगे 2 to the power 4 में 16। आप बना के देख लेना, एक एक एलिमेंट लेके बनाओगे तो 4 बनेंगे, फिर 2 एलिमेंट लेके बनाओगे A B A C A D B C B D C D करके तो बनेंगे, फिर 3 लेके बनाओगे, फिर एक पूरा ABCD बनाओगे और पाई को जोड़ोगे मिला के 16 बनेंगे। तो इस फॉर्मूले को ध्यान रखो, जितने उस सेट में एलिमेंट हैं 2 के ऊपर उतनी की पावर लगा दो, उतने सबसेट बनेंगे। गॉट इट। सो इन दिस वे नाउ वीडियो हैज़ बिकम टू लॉन्ग, सो इसको हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं, और सेट के बारे में हम कल फिर डिस्कस करेंगे। अभी हम कोई एक्सरसाइज या कोई होमवर्क देने वाला नहीं है, आपको खुद अपना क्वेश्चन सॉल्व करना, डाउट भेजना, बिकॉज ऑलरेडी हम बहुत सारे करा चुके हैं, हम जस्ट रिवाइज करा रहे हैं सारे कॉन्सेप्ट्स। ठीक, तो मेरे वीडियो को पॉज करके फिर सुनो, फिर समझो, फिर देखो, फिर आपको समझ में आएगा। ओके, तो अच्छा ये काम कर रहे हैं, और बाकी देखते हैं कोई डाउट आया होगा तो उस डाउट को भी सॉल्व करते हैं, और बाकी कल से थोड़ा और फास्ट बढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।